Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, in today's class we are going to learn the vocabulary part from the 5th unit 9th class English. Here in vocabulary you have a question. Read the following sentences and notice the meaning of the underlined word. And the sentence is, they reached their dwelling place, hoping a bright morning the next day. In this sentence, bright means full of light or shining strongly or happy. So here students, you have to notice the underlined word. You have to notice the underlined word. Here the underlined word is bright. This bright word is underlined here. You have to notice this underlined word and read carefully and understand the meaning of that underlined word. So students, आज की इस vocabulary part में यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं. इस जुमलों में एक underlined word है bright. तो इस वर्ड को आपको गौर से पढ़ना है और समझना है इसके मायने. जब जब ये लफ्ज़ इन जुमलों में आया है तो उस जुमलों के चलते उसके मायने और मतलब किस तरह होते हैं. तो जब भी ये लफ्ज़ जिन जुमलों में आता है, जुमलों के लिहाज से इसके मायने और मतलब अलग अलग होते हैं. द वर्ड ब्राइट gives the different meaning in different sentences. According to the sentence, the meaning of this word is completely different. So you need to understand the sentence first, and according to that sentence, the word, underlined word, giving the meaning is what. तो जो underlined word जुमले के एतबार से, जुमले के लिहाज से दिया गया हुआ लफ्ज़ किस तरह के मायने और मतलब देता है, आपको यहाँ पे ये लर्न करना है, यानी कि सीखना है. तो हम सीखेंगे यहाँ पे ब्राइट वर्ड के अलग अलग मायने. अलग अलग जुमलों में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो अलग अलग मायने और मतलब किस तरह से देता है. द वर्ड ब्राइट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस. When it used in different sentence, according to that sentence, it will give you the meaning. So each and every sentence has the same word, but it has, according to that sentence, it has the completely different meaning. So understood? Now come to the question. Identify the meaning of bright in each of the following sentences and use them in your own sentence. सो आपको यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड का, इस लफ्ज़ का क्या मायना है, क्या मतलब है, मालूम करना है. देन उसके बाद इसको आपके अपने खुद के जुमलों और फ़िक्रों में इसको इस्तेमाल करना है. तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वन वर्ड. सो हियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक bright colors. In this sentence, the underlined word is bright, and the meaning, the sentence, according to this sentence, the bright word gives the meaning is strong, thick, easy to see. यहाँ पे इस जुमले में bright का मतलब है ऐसा चमकीला, भड़कीला, जो कि आसानी से नज़र आए, ऐसे इसका मतलब होता है. यहाँ पर इस जुमले के लिहाज से इस लफ्ज़ का मतलब होता है चमकीला, चमकदार रंग, भड़कीला, जो कि आसानी से दिखाई दे. आई लाइक ब्राइट कलर्स मतलब मुझे चमकीले, चमकदार, भड़कीले रंग पसंद हैं. सो यहाँ पे इस लफ्ज़ का मतलब आ रहा है चमकदार रंग.
That means strong, thick and easy to see. This bright gives the meaning. Now next sentence, Tejaswini gave me a bright smile. Here the word bright, according to this sentence, the word bright gives the meaning of cheerful and lively. यानी कि ऐसी मुस्कुराहट, खुशनुमा मुस्कुराहट, खुशी से भरी। तो यहाँ पे ये जुमला है, तेजस्विनी ने मुझे एक खूबसूरत और एक ऐसी ज़िंदगी से भरपूर खुशनुमा मुस्कुराहट दी है। नेक्स्ट, सिंधु इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट। हियर अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस द ब्राइट गिव्स द मीनिंग ब्रिलियंट, क्विक टू लर्न। ब्रिलियंट और क्विक टू लर्न। तो इसका मतलब है सिंधु इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट, मतलब है सिंधु एक रोशन तालिबे इल्म, यानी कि एक ब्रिलियंट, आसानी से सीखने वाला स्टूडेंट है, यानी कि तालिबे इल्म है। नेक्स्ट इज यमुना हैज़ ब्राइट आइडियाज़। यमुना हैज़ ब्राइट आइडियाज़। हियर the word, according to this sentence, the word bright gives the meaning of helpful, helpful यानी कि मददगार। यमुना हैज़ ब्राइट आइडियाज़, यानी कि यमुना के पास मददगार आइडियाज़ हैं, यानी कि ख्यालात हैं। तो यहाँ पे इस ब्राइट का मतलब हो रहा है मददगार, helpful. Next sentence, this young player has a bright future. According to this sentence, the word bright gives the meaning of likely to be successful, likely to be successful. इस जुमले के एतबार से यहाँ पे जो वर्ड है ब्राइट, इसका मतलब होता है दिस यंग प्लेयर हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल इसका बहुत रोशन है, यानी कि सक्सेसफुल, कामयाब है, इसका मुस्तकबिल यहाँ पर कामयाब है। अंडरस्टूड। तो किस तरह यहाँ पे लफ्ज़ के मायने उसके जुमलों के एतबार से किस तरह एक ही लफ्ज़ के मायने कितनी दफ़ा बदल रहे हैं, ये आपको गौर करना है। नेक्स्ट, we took rest in a bright room. We took a rest in a bright room. According to this sentence, the word bright gives the meaning full of light, full of light. यानी कि we took rest in a bright room, इसका मतलब है हमने ऐसे कमरे में आराम किया जो कि बहुत रोशन था, full of light यानी बहुत ज़्यादा रोशनी से भरा था, एकदम चमकदार था। तो यहाँ पे इस लफ्ज़ के मायने क्या हो गए हैं, फुल ऑफ लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा रोशनी वाला। तो इस तरह यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग जुमलों में एक ही लफ्ज़ जब अलग जुमले में इस्तेमाल होता है तो उस जुमले के एतबार से अलग उसके मायने और मतलब हो जाए हैं। सो इन दिस सेंटेंस वी लर्न द वर्ड bright, about the word bright, which is one word bright, and the one word gives different meaning according to different sentences. Whenever it used in different sentence, the meaning will be changed. According to the sentence, the word meaning is completely different. So जुमले के एतबार से एक ही लफ्ज़ किस तरह अपने मायने मतलब बदलता है, ये आज हमने यहाँ पे सीखा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है ब्राइट, ब्राइट के मायने हैं रोशन। तो ये रोशन जब अलग अलग जुमलों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो जुमले के एतबार से ये अपने मतलब मायने किस तरह बदलता है, ये हमने यहाँ पे देखा है। सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। उम्मीद करती हूँ आप सब यहाँ पे सीखे हैं अच्छे से। सो वन वर्ड गिव द डिफरेंट मीनिंग व्हेन इट इज़
comes in different sentences, according to that sentence, that word meaning will be different. होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से यहाँ पे सीखा है कि किस तरह। ऐसे ही कुछ और जुमलों के साथ, ऐसे ही कुछ और नए लफ्ज़ के साथ, नई वोकैबुलरी के साथ हम हमारी अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।